بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی سلسلے کی نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ اس تاریخی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی تاریخی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ایک میں ایڈوانس آج معذرت کرنا چاہوں گا کہ آج کچھ گلا خراب ہے، تو اگر درمیان میں آواز کوئی خراب ہو جائے تو اس کے لیے ایڈوانس سوری۔ نور الدین زنگی کی موت نے سلطنت اسلامیہ کو تاریخ کے سب سے بڑے خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اس خطرے کا سب سے زیادہ خطرناک پہلو یہ تھا کہ اپنے ہی امیر اور وزیر صلیبیوں کے دوست اور اسلام کے دشمن ہو گئے تھے۔ مصر کے اندرونی حالات ابھی پوری طرح نہیں سنبھلے تھے۔ صلاح الدین ایوبی مصر سے نہیں نکل سکتا تھا۔ ایسے حالات میں وہ یہی کر سکتا تھا کہ سلطنت اسلامیہ کے دفاع کا ارادہ دل سے نکال دے اور صرف مصر کے دفاع کو مضبوط رکھے۔ لیکن میرا یہ دوست ذرا بھر نہ گھبرایا۔ اس ضمن میں میرے ساتھ بات کرتے ہوئے اس نے کہا، اگر میں اسلام کی پاسبانی سے دستبردار ہو جاؤں تو روز محشر صلیبیوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔ اسلام کی پاسبانی اور فروغ کو وہ فرمان خداوندی سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کبھی حاکم یا حکمران نہیں سمجھا۔ مجھے صلاح الدین ایوبی کی نوجوانی بھی یاد ہے جب وہ پوری طرح عیش و عشرت میں ڈوب گیا تھا۔ ایک چیز میں یہاں کلیئر کر دوں کہ یہ سٹوری جو ہے یہ والی، یعنی یہ والا جو بیان ہے وہ اس کا ایک رائٹ ہینڈ جسے کہہ لیں کہ وہ بیان کر رہا ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ پچھلی ویڈیو میں آ چکا ہے۔ تو آگے سے ویڈیو کو اب دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ مجھے صلاح الدین ایوبی کی نوجوانی بھی یاد ہے جب وہ پوری طرح عیش و عشرت میں ڈوب گیا تھا۔ وہ شراب بھی پیتا اور رقص و سرود کا دل دادا تھا۔ موسیقی اور رقص کی باریکیوں اور گہرائیوں کو سمجھتا اور نسوانی حسن کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کرتا اور تعیش کے لیے حسین ترین لڑکی کا انتخاب کرتا تھا۔ کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا تھا کہ یہ نوجوان چند ہی سال بعد اسلام کا سب سے بڑا علمبردار اور اسلام کے دشمنوں کے لیے برق اور طوفان بن جائے گا۔ اپنے چچا کے ساتھ وہ صلیبیوں کے خلاف پہلے ہی مارکے میں گیا تو اس نے سب کو حیران کر دیا، اور جب وہ اس مارکے سے واپس آیا تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ عیش و عشرت پر لعنت بھیجی اور اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ اس نے قوم کو اور اپنی فوج کو یہ نعرہ دیا کہ سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں۔ اسے اس بدلی ہوئی کیفیت میں دیکھنے والے تسلیم نہیں کرتے کہ وہ کبھی عیاش بھی ہوا کرتا تھا۔ کردار کی بلندی اور پختگی اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے نفس اور نفسانی خواہش کو مار دیا جائے۔ یہ پختگی صلاح الدین ایوبی کے کردار میں تھی۔ دوستوں کی محفلوں میں وہ کہا کرتا تھا، مجھے کافروں نے مسلمان بنایا ہے۔ اگر ہم اپنے ان نوجوانوں کو جو مذہب سے منحرف ہو گئے ہیں کافر کی ذہنیت دکھا دیں تو وہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ دشمن کے ساتھ انہیں پیار کے جو سبق دیے جا رہے ہیں وہ انہیں قومی وقار سے محروم کر رہے ہیں۔ میں اپنی قوم کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یاد کرانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو جان لو کہ تم کون ہو اور کیا ہو، اور اپنے دشمن کو اچھی طرح پہچان لو کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، اور تمہارے متعلق وہ کیا ارادے رکھتا ہے۔ اس کے کردار کا رخ دشمن نے ہی بدلا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے مقصد اور عزم میں اس حد تک مگن رہا کہ اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ وہ عالم اسلام کا سب سے بڑا قائد ہے، مصر کا حاکم کل ہے اور فن حرب و ضرب کا ایسا استاد کہ صلیبیوں کے کمانڈر متحد ہو کر بھی اس سے خائف رہتے ہیں۔ اس کی مالی حالت یہ تھی کہ وہ حج نہیں کر سکا۔ جہاد نے اسے مہلت نہ دی۔ آخری عمر میں اس کی یہی ایک خواہش رہ گئی تھی کہ حج پر جائے، مگر اب اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔ وہ جب فوت ہوا تو اس کی ذاتی متاع صرف 47 درہم چاندی کے اور ایک ٹکڑا سونے کا تھا۔ اس کی جائیداد صرف ایک مکان تھا جو اس کے باپ دادا کا تھا۔ یہ اس کے کردار کی پختگی کا حیران کن مظاہرہ تھا کہ اس نے جب اپنے سالاروں وغیرہ کو کانفرنس کے لیے بلایا تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ یا پریشانی کا شائبہ تک نہ تھا۔ کانفرنس کے حاضرین پر خاموشی طاری تھی۔ انہیں توقع تھی کہ سلطان ایوبی گھبرایا ہوا ہوگا، مگر اس نے مسکرا کر سب کو دیکھا اور کہا، میرے رفیقو، تم نے بڑے ہی دشوار اور پیچیدہ حالات میں میرا ساتھ دیا ہے۔ آج ایسے حالات نے ہمیں للکارا ہے جو بظاہر ہمارے قابو میں آنے والے نہیں، لیکن یاد رکھو اگر ہم نے ان حالات پر قابو نہ پایا تو ہم سب کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور خدا کے حضور بھی رسوائی۔ دنیا میں تاریخ ہماری قبروں پر لعنت بھیجے گی اور روز محشر وہ شہید ہمیں شرمسار کریں گے جنہوں نے اسلام کی آبرو پر جانیں قربان کی ہیں۔
اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب جاننے قربان کر دیں۔ اس تمہید کے بعد اس نے اپنے اعلیٰ حکام کو ہر ایک تفصیل بتائی اور کہا کہ اب انہیں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنا پڑے گا۔ اس نے سب کے چہروں کا جائزہ لیا، کچھ دیر خاموش رہا، سب کے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ یہ حکام ہر صورتحال میں اس کا ساتھ دیں گے۔ اس نے کہا، میرا پہلا قدم یہ ہے کہ میں اپنی خود مختاری کا اعلان کرتا ہوں۔ میں اب مرکزی خلافت کا پابند نہیں رہنا چاہتا، لیکن میں یہ اعلان تم سب کی اجازت کے بغیر نہیں کروں گا۔ مجھے اجازت دینے یا نہ دینے سے پہلے ایک دو پہلوؤں پر غور کر لو۔ ایک یہ کہ خلافت عملاً ختم ہو چکی ہے، جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ خلیفہ 11 سال کا بچہ ہے۔ اس پر 3-4 عمرہ نے قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ عمرہ صلیبیوں کے دوست ہیں، لہذا آپ کو سمجھے میں دیر نہیں لگنی چاہیے کہ خلافت صلیبیوں کی گود میں چلی گئی ہے۔ اب ہماری ٹکر خلافت کے خلاف ہے۔ اگر تم خود مختار اور آزاد نہیں ہوتے تو تمہیں خلیفہ کے حکم ماننا پڑیں گے، اور یہ حکم سلطنت اسلامیہ کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ کیا ان حالات میں یہ اقدام صحیح نہیں ہوگا کہ میں مصر کو خلافت سے آزاد کر دوں اور اس کے بعد تمہارا ہر قدم ایسا آزادانہ ہو جو اسلام کی بقا کے لیے ضروری ہو؟ کیا آپ خلافت کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ ایک سالار نے پوچھا۔ میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ کل پرسوں تک میرے وہ ایلچی واپس آ جائیں گے جنہیں میں نے عمرہ کی طرف بھیج رکھا ہے۔ اگر مجھے جنگی کارروائیوں کا فیصلہ کرنا پڑا تو گریز نہیں کروں گا۔ آپ مصر کو خود مختار مملکت قرار دے دیں۔ ایک حاکم نے کہا، ہم 11 سال کے بچے کو خلیفہ تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو کیا تم سب مجھے سلطان مصر تسلیم کرو گے؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ تمام حاضرین نے بیک زبان کہا کہ وہ اسے سلطان مصر تسلیم کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت خود مختاری کا اعلان کر دیا اور مصر کو آزاد مملکت قرار دے دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی اسے اسی وقت قانون کے مطابق سلطان کا خطاب مل گیا۔ میں امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، میدان جنگ کا بادشاہ ہوں۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم نے دیکھا ہے کہ میں صلیبیوں کے لشکر کے درمیان گھومتا پھرتا رہا ہوں۔ میں نے 10 جاں بازوں سے 10 ہزار لشکروں کو تہہ بالا کیا ہے، مگر اپنے بھائیوں کے خلاف جنگ کی سوچتا ہوں تو تمام جنگی چالیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ میری تلوار نیام سے باہر نہیں آتی۔ مجھے اور تم سب کو یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ ہم آپس میں لڑیں اور صلیبی تماشا دیکھیں۔ یہ تماشا ہمیں دکھانا ہی پڑے گا سلطان محترم، ایک سالار نے کہا۔ اگر اپنے بھائیوں پر الفاظ کا اثر نہ ہو تو تلوار استعمال کرنی ہی پڑے گی۔ ہم میں سے کوئی بھی خلافت کی گدی کا خواہش مند نہیں۔ ہم جو کچھ کریں گے اسلام کی خاطر کریں گے، ذاتی مفاد کی خاطر نہیں۔ سلطان ایوبی نے اس سے پہلے 2 ایلچی دمشق، حلب، موصل اور 2-3 اور ریاستوں کے عمرہ کی طرف بھیج رکھے تھے۔ اس نے سب کو طویل پیغام بھیجا تھا جس میں اس نے سب کو صلیبی خطرے سے آگاہ کیا اور انہیں متحد ہونے کی تلقین کی تھی۔ وہ انہیں اسلامی وحدت کا قائل کرنا چاہتا تھا۔ دونوں ایلچی مایوس واپس آ گئے۔ کسی ایک بھی امیر نے اس کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ بعض نے مذاق اڑایا تھا۔ ایلچیوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ سب سے پہلے خلیفہ کے دربار میں گئے، پیغام پیش کیا تو خلیفہ نے خود پڑھنے کی بجائے ان عمرہ کے حوالے کر دیا جن کے ہاتھوں میں وہ کٹ پتلی بنا ہوا تھا۔ انہوں نے ہی اسے خلافت کی گدی پر بٹھایا تھا۔ ان عمرہ نے سلطان ایوبی کا پیغام پڑھا، آپس میں خسر پھسر کیا، اور ایک نے خلیفہ سے کہا کہ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کے خلاف جنگ کا بہانہ کر کے تمام مسلمان ریاستوں کو ایک ریاست بنانے کی سوچ رہا ہے، اس کے بعد وہ اس ریاست کا حکمران بنے گا۔ دوسرا میل بول پڑا، اس نے بھی 11 سال کی عمر کے خلیفہ کو سلطان ایوبی کے خلاف بھڑکایا اور کہا، آپ اسے حکم دے سکتے ہیں کہ جنگ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ صرف خلیفہ کر سکتا ہے۔ اگر صلاح الدین ایوبی خلیفہ کی حکم عدولی کرے تو آپ اسے معزول کر کے واپس بلا سکتے ہیں۔ مصر کی عمارت کسی اور کے حوالے کی جا سکتی ہے۔ کامسن خلیفہ نے ایلچیوں کو یہی حکم دیا اور کہا، صلاح الدین ایوبی سے کہنا کہ وہ ہمارے حکم کا انتظار کرے۔ یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ اسلامی وحدت ضروری ہے یا نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس جو فوج ہے اس میں زنگی مرحوم کے بھیجے ہوئے بہت سے دستے ہیں۔ ایک امیر نے خلیفہ سے کہا، اسے حکم بھیجا جائے کہ وہ دستے واپس بھیج دے۔ اسے اپنی مرضی سے فوج کے استعمال کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ اسے کہنا کہ وہ دستے سوار اور پیادہ جو اسے خلافت کی طرف سے دیے گئے تھے وہ واپس کر دے۔ خلیفہ نے کہا، اور تم لوگ اب جا سکتے ہو۔ اور ایوبی سے کہنا کہ آئندہ خلیفہ کو اس قسم کے پیغام بھیجنے کی ضرورت نہ کرے، ایک اور امیر نے کہا۔ ایلچیوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ دوسری عمرہ کے پاس گئے۔ سب نے پیغام کا مذاق اڑایا، بعض نے سلطان ایوبی کے خلاف توہین میز الفاظ بھی کہے۔ وہ ایلچی واپس آ گئے۔ سلطان ایوبی کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ آئی، جیسے اسے ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ اسے دراصل علی بن سفیان کا انتظار تھا جسے اس نے خفیہ دمشق بھیج رکھا تھا۔ فوجی جاسوسی اور سراغر سنی کا یہ ماہر اپنے ساتھ کم و بیش 100 لڑاکا جاسوس لے کر دمشق گیا تھا۔ یہ لوگ تاجروں کے قافلے کی صورت میں تاجروں کے بیس میں گئے تھے۔ سلطان ایوبی کو ان کی بھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔
नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद इतला के फौरन बाद सुल्तान यूबी को ये इतला मिली कि अमीरों ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया है। ये इतला भेजने वाला कोई मामूली सा इंसान नहीं था, बल्कि नूरुद्दीन जंगी की बीवी थी जो नए खलीफा की मां थी। उसने खुफिया तौर पर अपना एक कासद काहरा की तरफ दौड़ा दिया था। उसने सुल्तान यूबी को वही हालात बताए जो जंगी की वफात के बाद वहां पैदा हो गए थे। उसने सुल्तान यूबी को कहला भेजा था, अब इस्लाम की आबरू आपके हाथ में है। मेरे कमसन बेटे को खलीफा बना दिया गया है। लोग मेरा एहतराम करने लगे हैं क्योंकि मैं खलीफा की मां हूं। वो समझते हैं कि मैं खुशकिस्मत मां हूं, मगर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मेरे बेटे को खलीफा नहीं बनाया गया, बल्कि मुझसे बेटा छीन लिया गया है। सैफुद्दीन अमीर मूसल ने और दूसरे तमाम अमीरों ने मेरे बेटे के गिर्द घेरा डाल लिया है। मेरे खामद के भतीजों ने भी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया है। अगर इन अमीरों का आपस में इत्तेहाद होता तो मैं इतनी परेशान ना होती। ये सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। अगर आप कहें तो मैं अपने हाथों अपने बेटे को कत्ल कर दूं, लेकिन इसके नताइज से डरती हूं। आप आ जाएं, ये आप बेहतर समझती हैं कि आप किस तरह आएंगे और क्या करेंगे। मैं आपको खबरदार करना चाहती हूं कि आपने सिर्फ तवज्जो ना दी या वक्त जाय किया तो किबला अव्वल पर तो सलीबी काबज है ही, खाना काबा पर भी इनका कब्जा हो जाएगा। क्या उन लाखों शहीदों का खून रायगा जाएगा जिन्होंने जंगी की और आपकी क़यादत में जानें कुर्बान की हैं। आप मुझसे पूछेंगे कि मैं अपने बेटे को अपने ज़ेरे असर क्यों नहीं रखती। मैं इसका जवाब दे चुकी हूं। उमरा ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है। अपने बाप की वफात के बाद वो सिर्फ एक बार मेरे पास आया था। वो मेरा बेटा लगता ही नहीं। उसे शायद हशीश पिलाई गई थी। वो भूल चुका है कि मैं उसकी मां हूं। भाई सलाहुद्दीन जल्दी आओ, दमिश्क के लोग आपका इस्तकबाल करेंगे। मुझे इसी कासद की जुबानी जवाब दें कि आप क्या करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे। सलाहुद्दीन यूबी ने कासद को उसी वक्त भेज दिया था। उसने जंगी की बेवा को यकीन दिलाया था कि वो बड़ा संगीन इकदाम करेगा, लेकिन सोच समझकर कदम उठाएगा। कासद को वापस भेजने के फौरन बाद सुल्तान यूबी ने अली बिन सुफियान को दमिश्क, मूसल, हलब, यमन और तमाम तार सलामी इलाकों में जाकर वहां का जायजा लेने के लिए कहा। यह कोई सरकारी नौयत का दौरा नहीं था। अली बिन सुफियान को जासूसों के अंदाज से बहरूम में वहां जाना था। उसका काम यह था कि मालूम करे कि मुसलमान उमरा जो खुद मुख्तारी का ऐलान कर चुके हैं क्या इरादे रखते हैं, सलीबियों के साथ उनका राब्ता है या नहीं, खलीफा की फौज का रुझान क्या है, क्या इस फौज को खलीफा के ऐसे हकाम की खिलाफ वर्जी के लिए तैयार किया जा सकता है जो इस्लाम के लिए नुकसानदेह और दुश्मन के लिए सूदमंद हों। और अली बिन सुफियान को यह भी मालूम करना था कि उन इलाकों के अवाम के जज्बात और नजरियात क्या हैं और क्या फदाई भी खलीफा के साथ मिल गए हैं। यह जायजा भी लेना था कि सुल्तान यूबी दमिश्क या किसी और मुसलमान इलाके पर फौज कुशी करे तो वहां के अवाम का रद्देमल क्या होगा। सुल्तान यूबी की कामयाबी का राज यही था कि वो अंधेरे में नहीं चलता था। उसे जहां जाना होता अपनी जासूसी के निजाम के जरिए वहां के अहवालों कवायफ, दुश्वारियों और खतरों का जायजा ले लेता था। जैसा कि पहली कहानियों में बताया जा चुका है कि उसका जासूसी का निजाम बहुत तेज और होशियार था। उसके जासूस जहां अदाकारी और बहरूप धारने की महारत रखते थे, वहां वो माहर छापामार, गोरीले और कमांडो भी थे। इसीलिए उन्हें लड़ाका जासूस कहा जाता था। वो बगैर हथियारों की लड़ाई के भी माहर थे। अली बिन सुफियान को खुदा ने जासूसी और सुराग रसानी का वसफ पैदाइश के साथ ही अता किया था। अब जंगी की वफात के बाद इस्लामी ममालिक के हालात मखदूश हो गए और सलीबी खतरा सर पर आ गया, तो उसने सुल्तान यूबी के इस हुक्म को समझने में कोई मुश्किल पेश न आई कि इन बदले हुए हालात का जायजा लेना है। और यह जायजा किस तरह लेना है, उसे मालूम था कि सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी उसकी लाई हुई रिपोर्ट के मुताबिक कोई कार्रवाई करेगा और यह कार्रवाई बकाए इस्लाम के लिए बेहद जरूरी होगी। यहां हम कहानी को कुछ दिन पीछे ले जाते हैं। जब अली बिन सुफियान काहरा से रवाना हुआ था, उसने एक लम्हा भी जाया किए बगैर अपने लड़ाका जासूसों में से कमोबेश 100 अफराद को मुंतखब किया। इन्हें मिशन बताया और कहा कि इस्लाम की आबरू उनसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रही है और इस मिशन में इन्हें अपनी महारत का पूरा इस्तेमाल करना है। इन्हें 100 आदमियों को ताजरों का लिबास पहनाया गया। अली बिन सुफियान मसनूई दाढ़ी के साथ काफिले का सरदार बना। उन्होंने ऊंटों पर मुख्तलिफ अक़साम का सामान लाद दिया जो उन्होंने दमिश्क वगैरह की मंडियों में बेचना और इसके बदले वहां से सामान लाना था। उनके साथ बहुत से ऊंट और चंद घोड़े थे। तजारती सामान में स्पार्टी ने तलवारों और बर्छियों जैसे हथियार छुपा रखे थे। इनमें आतशगीर मादा भी था और आग लगाने का दीगर सामान भी। ये काफिला रात के वक्त काहरा से रवाना हुआ और तुलुए सहर तक बहुत दूर निकल गया। कुछ देर आराम करके काफिला फिर रवाना हुआ। अली बिन सुफियान बहुत जल्दी मंजिल पर पहुंचना चाहता था। सूरज गरूब हो गया तो भी उसने काफिले को ना रोका
रात खासी गुजर चुकी थी जब एक बड़ी मौजूद जगह आ गई। ये सरसब्ज खिता था और वहां ऊंची नीची चट्टानें भी थी। जाहिर है कि वहां पानी भी था। काफिला आराम और पानी के लिए रुक गया। ये लोग ताजर नहीं फौजी थे। इनकी हर हरकत में डिसिप्लिन था, एहतियात थी और ट्रेनिंग के मुताबिक वो खामोशी इख्तियार किए हुए थे। ऊंट और घोड़े भी ऐसे तरबियत याफ्ता थे कि इंसानों की तरह खामोश थे। अली बिन सफियान ने चट्टानों और टीलों के अंदर जाने की बजाय बाहर ही पड़ाव किया। फौजी दस्तों के मुताबिक 2 आदमियों को पानी की तलाश के लिए भेजा गया। सब ने हथियार निकाल लिए थे क्योंकि उन दिनों सफर में 2 खतरे थे। एक खतरा सहराई डाकुओं का था और दूसरा सलीबियों के छापामार दस्तों का। उनके ये दस्ते दरअसल डाकू ही थे जो मुसलमानों के काफिलों को लूटते फिरते थे। 2 आदमी इस खित्ते के अंदर चले गए। उन्होंने ये भी देखना था कि यहाँ दुश्मन के छापामारों या गश्ती दस्तों ने क्याम ना कर रखा हो। कुछ दूर अंदर गए तो कहीं रोशनी का धोखा सा हुआ। वो आगे गए और एक टीले पर चढ़ गए। इन्हें बड़ी अच्छी जगह नजर आई जो मैदानी सी थी। वहां पानी भी था, हरियाली भी थी और खजूर के दरख्त भी। वहां 2 मशलें जल रही थी। इनकी रोशनी में इन्हें 6-7 आदमी और 4 लड़कियां नजर आई। बहुत खूबसूरत लड़कियां थी। उन्होंने आग भी जला रखी थी जिस पर वो गोश्त भून रहे थे और प्यालों में वो कुछ पी रहे थे जो शराब ही हो सकती थी। जरा परे घोड़े और 3-4 ऊंट बंधे थे। बहुत सारा सामान भी एक तरफ पड़ा था। अली बिन सफियान के दोनों आदमी छुपकर करीब चले गए। रात के सुकूवत में उन लोगों की बातें साफ सुनाई दे रही थी। उनका हंसी मजाक बता रहा था कि ये लोग मुसलमान नहीं। लड़कियां बेहयाई की हरकतें भी कर रही थी। इन दोनों आदमियों ने इन्हें नजरअंदाज ना किया। वापस आकर अली बिन सफियान को बताया। अली बिन सफियान के और छुप पर करीब से देखा। इन आदमियों लड़कियों की जुबान को और थी जो अली बिन सफियान समझता था। वो ईसाई थे। अली बिन सफियान सोच रहा था कि वो इन लोगों के पास चला जाए और मालूम करे कि वो कौन है और कहां जा रहे हैं, या इनकी नकलो हरकत देखता रहे। उनके साथ 100 लड़ाका जासूस थे। उसे इन 6-7 आदमी और 4 लड़कियों से कोई खतरा नहीं था, लेकिन वो इन्हें सरागर सा निगाहों से देख रहा था। उसे शक हो गया था कि ये सलीबी जासूस और तकरीबकार हैं और किसी इस्लामी ममलकत में जा रहे हैं। अगर ऐसा ही था तो ये उसके मुताबिक के लोग थे। वो और ज्यादा करीब होने के लिए टीले के ऊपर सिरकता हुआ आगे गया तो ठटक कर रुक गया। वहां टीला खत्म हो जाता था। उसे अपने बिल्कुल नीचे 2 आदमी नजर आए जिनके मुंह और सर स्याह कपड़ों में लिपटे हुए थे। वो टीले की ओर से इन आदमियों और लड़कियों को देख रहे थे। वो बिला शक्को शुबा सहराई डाकू थे और उनकी नजर लड़कियों पर थी। ये 2 नकाबपोश पीछे हट आए। उन्होंने आपस में जिस जबान में बातें की वो अली बिन सुफियान की मादरी जबान थी। इनके पास हथियार हैं, एक डाकू ने कहा। हाँ, दूसरे ने कहा, मैंने देख लिया है, इनकी तलवारें सीधी हैं, ये ईसाई हैं। ये आम किस्म के मुसाफिर मालूम नहीं होते। इन्हें सो जाने तो सबको बुला लाते हैं। हम 8 आदमी इन्हें सोते में ही पकड़ सकते हैं। पकड़ने की क्या जरूरत है? आदमियों को सोते में खत्म कर देंगे और लड़कियों को घोड़ों पर डाल लेंगे। वो दोनों अपने साथियों को बुलाने के लिए चल पड़े। अली बिन सफियान ने छुप छुप कर उनका ताकब किया। वो किसी और रास्ते से बाहर निकल गए। वहां इनके घोड़े खड़े थे। वो घोड़ों पर सवार हुए अंधेरे में गायब हो गए। अली बिन सफियान का काफिला ऐसी तरफ क्याम किए हुए था जिधर डाकू नहीं गए थे। अली बिन सफियान के लिए यह फैसला करना मुश्किल हो गया कि वो इन लोगों को खबरदार कर दे या उन्हें अपने काफिले में ले जाए। वो गहरी सोच विचार के बाद उसने एक तरीका सोच लिया। अपने आदमियों में वापस आया। 20-22 आदमियों को बर्छियों से मुसल्ला करके अपने साथ ले गया। इन्हें मौजूद जगहों पर तैयार खड़ा कर दिया और अच्छी तरह समझा दिया कि इन्हें क्या करना है। वो खुद भी चौकस और होशियार रहा और इधर उधर घूमता फिरता रहा। उसे मालूम नहीं था कि डाकू किस वक्त आएंगे। उसने देखा कि लड़कियां और इनके साथ के आदमी सो गए हैं। सिर्फ एक आदमी बर्छी हाथ में लिए टहलता रहा। इससे मालूम होता था कि ये लोग तरबियत याफ्ता हैं। इस आदमी को उन्होंने संतरी खड़ा किया था। मशलें जलती रही। सहर हो चुकी थी जब टीलों के अंदर घोड़ों के चलने की आहट सुनाई दी। सब होशियार हो गए। लड़कियों का संतरी बदल गया था। अब दूसरा आदमी पहरा दे रहा था। डाकू टीलों के दरमियान थे और अली बिन सफियान और इसके आदमी टीलों के ऊपर। थोड़ी ही देर बाद 8-9 डाकू उस जगह दाखिल हुए जहां इनका शिकार सोया हुआ था। संतरी घबरा गया। उसने जल्दी से अपने साथियों को जगाया। डाकुओं ने उनके गिर्द घेरा डाल लिया और घोड़ों से कूद आए। लड़कियों के साथ के आदमी जाग उठे मगर डाकुओं ने इन्हें हथियार उठाने की मोहलत ना दी। एक ने ललकार कर कहा, अपना सामान और लड़कियां हमारे हवाले कर दो और अपनी जाने बचाओ। उसने लड़कियों से कहा, तुम इस तरफ आ जाओ, मारी जाओगी। 2 डाकुओं ने उन्हें धकेलकर एक तरफ कर दिया। इनके आदमी नहाते थे, फिर भी 2 ने मुकाबला करने की कोशिश की। वो वाकई तरबियत याफ्ता थे, बेजिगरी से लड़े। अली बिन सफियान की आवाज पर जो उसने पहले मुकर्रर कर रही थी उसके आदमी अकाबों की तरह टीलों से उतरे और डाकुओं भी समझ ही ना पाए थे कि ये कौन लोग हैं कि एक बर्छी एक डाकू के जिस्म में दाखिल हो चुकी थी। इससे पहले डाकुओं के हाथों लड़कियों के साथ
वक्त के 2 आदमी मारे जा चुके थे, जिसका अली बिन सुफियान को कोई अफसोस नहीं था। वो गालिबन यही चाहता था कि इनमें से 1-2 आदमियों का खून बह जाए ताकि दूसरों पर, खुसूसन लड़कियों पर दहशत तारी हो जाए। अली बिन सुफियान ने अपने आदमियों को टीलों पर चढ़ा दिया और इन लोगों के पास बैठ गया। लड़कियां बहुत ही डरी हुई थी। इनके सामने 2 लाशें अपने साथियों की और 9 लाशें डाकुओं की पड़ी थी। अली बिन सुफियान ने उनकी जुबान में इन आदमियों लड़कियों से बातें शुरू कर दी। वो लोग उसके इस कदर ममनून थे जैसे इसके मरीद बन गए हों। उसने उन्हें मौत के मुंह से निकाला था। उनसे उसने पूछा कि वो कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया तो अली बिन सुफियान मुस्कुराया और बोला, अगर तुम लोग मुझसे ये सवाल पूछते तो मैं भी ऐसा ही गलत जवाब देता। मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा कि इतनी खौफजदगी में भी तुमने अपना पर्दा नहीं उठाया। तुम कहां से आए हो? एक ने उससे पूछा। और कहां जा रहे हो? जहां से तुम आए हो, अली बिन सुफियान ने जवाब दिया। और वही जा रहा हूं जहां तुम जा रहे हो। हमारे काम मुख्तलिफ है, मंजिल एक ही है। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, हैरान से हुए और अली बिन सुफियान को देखने लगे। वो मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, क्या तुमने देखा था कि मैंने कैसी चाल से इन डाकुओं को खत्म कर दिया है? कोई मुसाफिर या कोई काफिला ऐसी चाल चल सकता है क्या? क्या ये एक तरबियत याफ्ता कमांडर की उस्तादी नहीं जो मैंने दिखाई है? तुम मुसलमान फौजी भी हो सकते हो। मैं स्लीब का सिपाही हूं, अली बिन सुफियान ने जवाब दिया। क्या तुम अपनी स्लीब दिखा सकते हो? क्या तुम अपनी स्लीब मुझे दिखा सकते हो? अली बिन सुफियान ने पूछा और सबकी तरफ देखकर कहा, तुम नहीं दिखा सकते। तुम्हारे पास स्लीबें नहीं हैं, क्योंकि जिस काम के लिए तुम जा रही हो इसमें स्लीब साथ नहीं रखी जा सकती। मैं तुमसे तुम्हारे नाम नहीं पूछूंगा, अपना नाम भी नहीं बताऊंगा, अपना काम भी नहीं बताऊंगा। सिर्फ ये बता देना जरूरी समझता हूं कि हम एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं और हम में से मालूम नहीं कौन कौन अपने वतन को वापस लौट सकेगा। हम जरूर कामयाब होंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस तरह मुझे और मेरे आदमियों को तुम्हारी मदद के लिए भेजा है, ये निशानी है कि तुम सही रास्ते पर हो और तुम कामयाब होगे। नूरुद्दीन जंगी की मौत इस हकीकत की निशानी है कि दुनिया पर सलीब की हुकूमत होगी। मुसलमानों का कौन सा अमीर रह गया है जो हमारे जाल में नहीं आ गया? मैं तुम्हें यही नसीहत करूंगा कि साबित कदम रहना। उसने लड़कियों की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा काम सबसे ज्यादा नाजुक और खतरनाक है। खुदावंद यीशु मसीह तुम्हारी कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगा। हम जो मर्द हैं वो अपनी जान देकर दुनिया की मुश्किलात से आजाद हो जाते हैं। तुम्हारी कोई जान नहीं लेता, तुमसे आबरू की कुर्बानी ली जाती है और यही सबसे बड़ी कुर्बानी है। अली बिन सुफियान उस्ताद था। उसकी जुबान में ऐसा तिलिस्म था कि वो सब दम खुद हो गए। थोड़ी सी देर में उसने उनसे कहलवा लिया कि वो सलीबियों और तकरीबकारी के लिए दमिश्क और दीगर इलाकों में जा रहे हैं। वो भी ताजरों के बेस में थे। अली बिन सुफियान सलीबियों के निजाम जासूसी की खुफिया बातें और इस्तिलाहें जानता था। उस वक्त तक वो बेशुमार सलीबी जासूस पकड़कर उनसे अकबाल जुर्म करवा चुका था। उसने जब इन इस्तिलाहों में बातें की तो लड़कियों और इनके साथ के आदमियों को न सिर्फ ये यकीन हो गया कि वो सलीबी जासूस है, बल्कि वो उसे जासूसों का कमांडर समझने लगे। उसने उन्हें बताया कि इसके साथ 100 आदमी है, इनमें लड़ाका जासूस भी है और फिदाई भी, जो दमिश्क वगैरह में उन आला अफसरों को कत्ल करने या गायब करने जा रहे हैं जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के मकतबे फिक्र के पैरोकार हैं। उसने उन्हें बताया कि वो लंबे अरसे से मिस्र में काम कर रहा था, अब उसे इधर भेजा जा रहा है। इस गिरोह ने अली बिन सुफियान के सामने अपना पर्दा उठाया और एक मुश्किल पेश की। वो ये थी कि इनका कमांडर डाकुओं के हाथों मारा गया। वो इन इलाकों में पहले भी आ चुका था जहां वो जा रहे थे। इसके मारे जाने के बाद वो अंधे हो गए थे। इन्हें एक रहनुमा की जरूरत थी। अली बिन सुफियान ने उन्हें तसल्ली दी कि वो अपने मिशन से हटकर उनकी रहनुमाई करेगा। वो उसे अपना मिशन बता दें। उन्होंने बता दिया। इन्हें चंद एक सलारों के नाम बताकर कहा गया था कि इन तक तोहफे पहुंचाने हैं और लड़कियों को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। ऐसे सलारों और अमीरों तक रसाई हासिल करनी है जो सलीबियों को अपना दुश्मन समझते हैं। उन्हें सलीबियों का दोस्त बनाना है। इस मरले पर आकर मेरा और तुम्हारा काम एक हो जाता है। अली बिन सुफियान ने कहा, मुझे इन सलारों और कायदीन को खत्म करना है जो दिल से सलीब की दुश्मनी नहीं निकाल रहे। तुम दमिश्क में कहां काम करोगे? तुम देख रहे हो कि हम ताजर बनकर जा रहे हैं, एक ने जवाब दिया। दमिश्क के करीब जाकर ये लड़कियां बापर्दा मुसलमान औरतें बन जाएंगी। हम सराय में क्याम करेंगे, वहां से ताजरों के बेस में सलारों वगैरह तक जाएंगे। अगली सुबह अली बिन सुफियान का काफिला दमिश्क की सिमत जा रहा था। ये सलीबी आदमी और लड़कियां भी इस काफिले में शामिल हो गई थी। जानवरों में डाकुओं के घोड़ों का इजाफा हो गया था। सलीबियों ने अली बिन सुफियान को अपना लीडर बना लिया था। इनकी नज़र में वो सलीबी था। उसने उन्हें कहा था कि वो इसके किसी आदमी के साथ बात ना करे, क्योंकि इनमें मुसलमान भी हैं जो बेशक फिदाई और तकरीबगार है, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं। रास्ते में अली बिन सुफियान ने इन सलीबियों को अपने साथ रखा और इनसे बातें पूछता रहा। इससे काम की बहुत सी बातें मालूम हो गई। अगले रोज काफिला दमिश्क में दाखिल हुआ। अली बिन सुफियान की हिदायत पर सराय में जाने की बजाय काफिले ने एक मैदान में खेमे गाड़ दिए। लोगों का हजूम जमा हो गया। बाहर से जब ताजरों के काफिले आते थे तो लोग इनके गिर्द जमा हो जाया करते थे। इनकी कोशिश ये होती थी कि माल दुकानों में जाने से पहले ही काफिले से ही खरीद लिया जाए। वहां से कम कीमत पर अशिया मिल जाती थी।
अली बिन सुफियान ने ऐलान किया कि 10 घोड़े भी बिकाऊ हैं। इस हजूम में दमिश्क के ताजर और दुकानदार भी थे। 2-4 घंटों में वहां मेला लग गया। अली बिन सुफियान ने अपने आदमियों से कह दिया कि वो माल रोके रखे और जल्दी फरोख्त ना करे। इतना ज्यादा हजूम देखकर उसने अपने चंद एक ज़हीन आदमियों से कहा कि वो लोगों में घुल मिल जाए और इनके ख्यालात मालूम करें। ये आदमी इस काम के माहिर थे। वो चूगे उतारकर हजूम में शामिल हो गए। इनमें से 2-3 शहर में चले गए। अली बिन सुफियान और उसके तमाम आदमियों ने मगरब की नमाज मुख्तलिफ मस्जिदों में तकसीम होकर पढ़ी। सलीबियों को वो खैमागाह में छोड़ गए थे। मस्जिदों में उन्होंने लोगों को बताया कि वो काहिरा से आए हैं और ताजर हैं। लोगों के साथ गपशप के अंदाज में उन्होंने उनके ख्यालात मालूम कर लिए। लोगों के ख्यालात और जज्बात अमीद अफजा थे। इनमें कुछ लोग भड़के हुए थे। वो नए खलीफा और उमरा के खिलाफ बातें करते थे और इनमें ऊंची हैसियत के लोग भी थे जो जानते थे और समझते थे कि दुनिया इस्लाम को सलीब ललकार रही है और अपनी खिलाफत याश उमरा के हाथ आ गई है। वो बहुत परेशान थे और कहते थे कि ज़िंदगी के बाद सिर्फ सलाहुद्दीन अय्यूबी है जो इस्लाम का नाम जिंदा रख सकता है। अली बिन सुफियान ने अपने आदमियों को बता दिया था कि ये लड़कियां और आदमी सलीबी हैं और इन पर यही जाहिर करते रहे कि हम सब सलीब के मिशन पर आए हैं। इन्हें कोई शक नहीं हुआ था। अली बिन सुफियान ने बताया था कि वो आज रात आराम करें और उसकी हिदायत का इंतजार करें। रात को वो एक सालार तौफीक जवाद के घर चला गया। वो ताजरों के बेस में था और मसनूई दाढ़ी लगा रखी थी। उसने दरबान से कहा कि अंदर इतला दो कि काहिरा से आपका एक दोस्त आया है। दरबान ने अंदर इतला दी तो अली बिन सुफियान को अंदर बुला लिया गया। तौफीक जवाद उसे पहचान ना सका। अली बिन सुफियान ने बात की तो तौफीक जवाद ने उसे पहचान लिया और गले लगा लिया। अली बिन सुफियान को इस शख्स पर भरोसा था। उसने अपने आने का मकसद बताया और ये भी बताया वो कुछ सलीबी जासूसों ने लड़कियों को फांस लाया है और अब ये सोचना है कि इन्हें किस तरह इस्तेमाल किया जाए। इससे पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ के अंदरूनी और बैरूनी हालात क्या हैं। अली बिन सुफियान ने उससे पूछा। काहिरा में बड़ी तशवीशनाक खबरें पहुंची हैं। तौफीक जवाद ने तमाम खबरों की तस्दीक की जो काहिरा पहुंची थी। उसने कहा, अली भाई तुम उसे खाना जंगी कहोगे लेकिन सलीबी खतरे को रोकने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी को खिलाफत के खिलाफ फौजकशी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर हम काहिरा से फौज लाएं तो क्या यहाँ की फौज हमारा मुकाबला करेगी? अली बिन सुफियान ने पूछा। तुम लोग हमले के अंदाज से ना हो, तौफीक जवाद ने कहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये जाहिर करें कि वो खलीफा से मिलने आए हैं और खलीफा की तज़ीम के लिए फौज के कुछ दस्ते साथ लाए हैं। अगर उमरा की नीयत ठीक हुई तो वो इस्तकबाल करेंगे। दूसरी सूरत में इनका रद्दअमल सामने आ जाएगा। जहां तक यहाँ की फौज का तल्लक है, मैं वसूख से कहता हूं कि ये फौज तुम्हारा मुकाबला नहीं करेगी बल्कि तुम्हारा साथ देगी। मगर ये भी जहन में रखो कि जितना तुम जितना वक्त जाय करोगे ये फौज इतनी तुमसे दूर हटती जाएगी। इस फौज का वो जज्बा मानने की कोशिश शुरू हो गई है जो इस्लामी फौज की असल कुव्वत है। तुम जानते हो अली भाई कि हुक्मरान जो ऐशो इशरत के दिल दादा होते हैं वो सबसे पहले दुश्मन के साथ समझौता करते हैं ताकि जंगो जदल का खतरा टल जाए। फिर वो फौज को कमजोर करते हैं और ऐसे सालारों को मंजूर नजर बनाते हैं जो खुदाई अहकाम की बजाय इनकी ख्वाहिशात के पाबंद हों। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे सालारों को पसंद नहीं करते। ये अमल यहां शुरू हो चुका है। हमारे आला रुतबों के चंद एक फौजी अफसर अपने जज्बे और ईमान से दस्तबरदार हो चुके हैं। अभी मुझ जैसे ऐसे सलार भी हैं जो सलीबियों को कभी दोस्त नहीं कहेंगे और नूरुद्दीन जंगी के जज्बा जहाद को जिंदा रखेंगे। मगर वो अपने तौर पर खिलाफत के अहकाम के बगैर क्या कर सकते हैं? कि मैं सुल्तान अय्यूबी से ये कह दूं कि यहाँ की फौज तो हमारा साथ देगी? अली बिन सुफियान ने पूछा। जरूर कह दो, तौफीक जवाद ने जवाब दिया। अलबत्ता खलीफा के महाफिज दस्ते यानी बॉडीगार्ड और उमरा के महाफिज दस्ते तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। इन दस्तों की नफरी कम नहीं और इनमें चुने हुए सिपाही हैं। जब से जंगी फौत हुए हैं इन दस्तों की खातर मदारत पहले से ज्यादा होने लगी है। इन्हें गालबन खाना जंगी के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ के लोगों में मुझे वो कौमी जज्बा नजर आया है। इससे मुझे तवक्को है कि हम यहाँ आए तो कामयाब होंगे। अली बिन सुफियान ने कहा। कौम इतनी जल्दी बेहिस नहीं हो सकती, तौफीक जवाद ने कहा। जिस कौम ने अपने बेटे शहीद कराए हों वो अपने दुश्मन को कभी नहीं बख्शती और जिस फौज ने दुश्मन से दो दो हाथ किए हों इसे इतनी जल्दी सर्द नहीं किया जा सकता। मगर हुक्मरानों के पास ऐसे हथकंडे होते हैं जो कौम और फौज को मुर्दा कर दिया करते हैं। अब कौम और फौज में नफाक पैदा किया जा रहा है। कौम की नजर में फौज को गिराया जा रहा है। मैं मोहतरम नूरुद्दीन जंगी की बेवा से मिलना चाहता हूं। अली बिन सुफियान ने कहा। वो खलीफा की वालदा भी है। उन्होंने सुल्तान अय्यूबी की खिदमत में पैगाम भेजा था कि वो इस्लाम की आबरू को बचाएं। क्या यह मुमकिन हो सकता है कि इन्हें यहाँ बुला लिया जाए? कल ही इनसे मुलाकात हो सकती है, तौफीक जवाद ने कहा। मैं इन्हें बुला सकता हूं, तुम्हारा नाम सुनकर वो फौरन आ जाएंगी। तौफीक जवाद ने अपनी खादमा को बुलाकर कहा कि खलीफा की वालदा के यहाँ जाओ, मेरा सलाम कहना और उनके कान में कहना कि काहिरा से कोई आया है। इसके साथ ही आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा नई तारीखी वीडियो के साथ आगे हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।